Jai Hind everyone, I Chinmay Mahale, XOT, Indian Air Force. Welcome you all again to the channel of Defense Mavericks. So today's video will be a very important and a special one. So important because you all know that in SSB, to check your domain knowledge, they ask you a lot of questions which are based on the armed forces. Okay. Some information about the Indian Army, Navy, and Air Force likewise is very important for you to give your answers in the SSB. Now, I'll tell you the reasons why it is important, and this video is special because I'll also be sharing a few of my own experiences when it comes to the SSB about the domain knowledge. So, now coming to the reason why this becomes very important, why the domain knowledge becomes important is because many of you tell the interviewing officer that we are very passionate about the armed forces, but then how do you show the passion? So my mentor had told me that passion is not shown through unnecessary motivation. Now when I say unnecessary motivation, what that means is कि तुम इंटरव्यू में जाके बोलोगे कि सर मुझे देश के लिए मर मिटना है, मैं तो गोली खाऊंगा और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. सो दैट इज नॉट पैशन, दैट इज जस्ट योर आई वुड से विशफुल थिंकिंग. ठीक है. So they don't need people who are going to die for the country, because obviously they need people who are going to kill for the country. It's not only about the war, right? There are so many other different aspects and roles of the Indian Army which we need to know, and we need to fulfill those roles if there is a need. Okay. So having knowledge about the organization which you want to join shows your passion. अगर तुम किसी चीज के बारे में सच में इंटरेस्टेड हो, तो तुम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेते हो उस चीज के बारे में जानने के लिए. ठीक है. तो यही पैशन होता है. ठीक है. पैशन ये नहीं होता है कि तुम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहो किसी चीज के लिए एंड देन यू हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट यू आर डूइंग और व्हाई यू आर डूइंग. सो यू शुड बी नोइंग वेर यू आर गोइंग टू एंटर इनटू. तो दैट इज द रीजन व्हाई डोमेन नॉलेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ पीपल हैव many ideas like ये तो knowledge की बात है, we can develop it after joining the army as well. So sure, of course you can develop it. Okay, even the academies will teach you all these things. But if you know some things beforehand, it gives you a very clear edge over uh, other aspirants. Or even if you don't think about it in a competition way, the as I told you, the good part is कि the interviewer will know कि okay, you are serious about what you want and what you like. ठीक है. अगर तुम्हें आर्म फोर्सेस पसंद है तो तुम्हें उनके बारे में कुछ पता होना चाहिए. ठीक है. नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, these are the few topics which we will be covering. So this is in general the contents page, as you can say. So we'll start from the role of the Indian Army, then a brief information about the Indian Army. Okay, then the rank, structure, weapons used, and so on. Okay. So before wasting any time, let's get started. Okay. Now, as you can see, the first thing which we are going to address or which we are going to learn is about the role of the Indian Army. Now, before I say anything about it, just think in your mind what could be the role of the Indian Army. Okay. Now, one thing which comes to your mind is, of course, the war and fighting for the country, and of course, so that is the first point. Okay. So when we say it's national security, what do we mean by national security? To maintain the territorial integrity. अब इसका क्या मतलब है? Territorial integrity means to maintain the land boundaries, और I would say the borders. ठीक है. तो इंडियन आर्मी क्या करती है कि अगर इंडिया की जो बॉर्डर है, whatever is the territory of India, whatever is the land territory of India, they maintain it. Okay. They make sure that no one enters that land, and even if someone tries to enter or someone enters, then it is their responsibility and job that they make sure that the person does not stay there. Okay. Or the person does not occupy that place. Okay. तो जैसे बहुत सारे वॉर्स में क्या होता है कि पीपल ट्राई टू एंटर योर एरिया एंड दे ट्राई टू क्लेम इट. ठीक है. तो आर्मी का काम होता है कि उनको भगाना है और ये देखना है कि कोई वापस अंदर ना आ सके. ठीक है. सो वाइल प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स. ठीक है. एंड टू एंश्योर नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी. सो यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द आर्मी. ओके. इनफैक्ट आर्मी का जो सबसे बड़ा तुमको पता है एनसीसी है. सो एनसीसी का भी मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन. राइट. नाउ मेनी पीपल हैव दिस डाउट कि सर जब वॉर नहीं करते तब क्या करते हैं. सो देर आर टू थिंग्स, यू नो इट, वॉर टाइम एंड पीस टाइम. सो वॉर टाइम के वक्त तो चलो हमें पता है कि वॉर करते हैं ताकि टेरिटोरी
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहे एंड ऑल दोस थिंग्स. बट व्हाट ड्यूरिंग द पीस टाइम? So during the peacetime also, Indian Army has a lot of responsibilities which they uh, very well do. The first one and the biggest one is the humanitarian relief. ठीक है. अब humanitarian relief क्या है कि जब भी कोई natural disaster होता है, whenever there is something which unfortunate happens in the country, so Indian Army or the Indian Armed Forces are considered as the last resort. ठीक है. अब last resort का क्या मतलब है? बहुत लोगों ने ये सुना होगा ये टर्म. ठीक है. अगर नहीं सुना है तो एक तरह से तुम्हारा थोड़ा इंग्लिश की भी पढ़ाई होगी. तो लास्ट रिसोर्ट क्या होता है कि बेसिकली जब सारी रास्ते बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो तुम कहते हैं ना हुकुम का इक्का. सो इंडियन आर्म फोर्सेस इज योर हुकुम का इक्का. ठीक है. जब कोई भी चीज काम नहीं कर रही है, इफ एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ योर हैंड, एवरीथिंग इज स्लिपिंग आउट, है ना, कहते हैं ना पानी सर से ऊपर चला जाता है, तब इंडियन आर्मी को कॉल जाता है कि वी नीड यू. एंड देन इंडियन आर्मी कम्स एंड दे डू द रिलीफ ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस. सो इसमें ऑल द थ्री फोर्सेस आर they work in unison, of course. So as you can see the photos over here, ठीक है, जैसे flooded areas में काम करना होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी you can see. So the Indian Army rescues civilians, citizens, and they also give them. So rescue करना मतलब ऐसा नहीं है कि उस एरिया से बचाए. उसके बाद what comes? Giving them food, giving them shelter, clothing, and medical supplies. अब ये मेडिकल सप्लाईज वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, जो तुम्हें आगे जाके थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस इन द लेटर पार्ट. ठीक है. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हाउ डज इंडियन आर्मी गिव प्रोवाइड मेडिकल सप्लाईज? डू दे कॉल द डॉक्टर्स? है ना, ऐसा नहीं है. दे हैव देयर ओन मेडिकल कोर. ठीक है. विच वी विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल लेटर. ठीक है. सो दे प्रोवाइड फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. ठीक है. एंड दे सेट अप रिलीफ कैंप्स. ठीक है. एज टेम्पररी शेल्टर्स. ठीक है. तो दिस इज हाउ द इंडियन आर्मी वर्क्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स. ठीक है. And then UN peacekeeping missions. Many of you must have heard UN peacekeeping missions. तो कुछ कंट्रीज होती है जिनके पास खुद की आर्मी नहीं होती है, या फिर दे आर नॉट सो एफिशिएंट, सो दे हैव टू रिलाई ऑन द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस. ठीक है. नाउ वन थिंग विच यू नीड टू नो अबाउट इंडियन आर्मी इज कि जब भी कोई यूएन में कोई जब पीस कीपिंग फोर्स होती है, तो द मोस्ट ट्रस्टेड आर्मी इज द इंडियन आर्मी. ठीक है. अब ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, इसका कोई आई वुड से तुमको ऐसा नहीं मिलेगा कि देर इज सम इंडेक्स एंड देर इज सम रैंकिंग एज सच. बट जनरली हमेशा अगर तुम देखोगे कोई भी पीस कीपिंग फोर्स होती है, उसमें इंडियन आर्मी ऑफिसर्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर. ठीक है. सो इनफैक्ट रिसेंटली एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी आया था न्यूज़पेपर में, इफ यू रीड न्यूज़पेपर्स. सो ब्लू हेलमेट्स, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज ब्लू हेलमेट्स, एक आर्टिकल था विच स्टार्टेड विद दिस हेडलाइन. ठीक है. पढ़ना तुम, जरूर पढ़ना. अगर अब तक नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज डू गिव इट अ रीड. ओके. सो दैट यू गेट टू नो मोर अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके. ऑफ द इंडियन आर्मी. देर आर सो मेनी ऑफिसर्स हु आर वेल नोन फॉर देयर वर्क. ठीक है. इन दिस. ओके. So the next other significant contributions is environmental conservation, collaboration with other ministries, joint exercises. So we'll be talking more about this, okay, in the later part of the video. Joint exercises with what all countries do we do this, how do we do it, and so on. ठीक है. एंड दिस यू नीड टू नो. इंडियन आर्मी ये भी करती है. ठीक है. आजकल सिविलियन से हो नहीं रहा है ये काम, तो आर्मी यहाँ पर भी आती है. ओके. सो इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी ब्लड डोनेशन कैंप. ठीक है. ब्लड डोनेशन कैंप वुड कम अंडर दिस आर्मी मेडिकल कोर का ही काम हो सकता है. उसके बाद दे ऑल्सो हैव ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स. ठीक है. सो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच इंडियन आर्मी डज एज पार्ट ऑफ सोशल सर्विस. ठीक है. तो यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर की तरह कोई सीएसआर एक्टिविटी नहीं है. ठीक है. इंडियन आर्मी इज कमिंग डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उन्हें कोई सीएसआर एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है. दोज हु आर फ्रॉम कॉर्पोरेट विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट दिस आर्मी डज फ्रॉम देयर ओन विल. ठीक है. एंड कोलेबोरेशन विद अदर मिनिस्ट्रीज. सो एज आई टोल्ड, ये सब काम करने के लिए देर आर सो मेनी अदर मिनिस्ट्रीज विद विच इंडियन आर्मी कोलैब्स. ठीक है. एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. नाउ डेज दिस इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. क्यों? बिकॉज साइबर वॉरफेयर इज द फ्यूचर. कहते हैं ना कि जिस कंट्री का साइबर वॉरफेयर स्ट्रांग है,
वो कंट्री आज के डेट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है व्हेन इट कम्स टू द इंडियन आर्म फोर्सेस. द साइबर वॉरफेयर इज रियली रियली स्ट्रांग. ठीक है, ऑब्वियसली वी डोंट नो मच अबाउट इट, but if you join the army and let's say you are in the technical arm, which again we'll be talking about in some time, and if you get to know get to work in this, so please I would say पक्का इसमें काम करना, you'll really like it. Okay, so going on to the next, some brief, or you can say some general information about the Indian Army. So it was founded on 26 January 1950, but obvious this is our Republic Day as well. So whenever the Republic of India was formed, the Indian Army was formed officially. Okay, and as British Indian Army, it was way back in 1895. Now this is the size of the Indian Army, so you can, so obviously you don't need to remember the number. What you need to know is this is the largest voluntary force. अब largest voluntary force क्या है? Indian Army does not ask anyone to join them. जो भी इंडियन आर्मी में जाता है, they go by their own will. ठीक है, देर आर मेनी कंट्रीज जहाँ पे सर्विस कंपलसरी है, जैसे यू नो इसराइल हो गया, सिंगापुर. ओके, देर आर मेनी कंट्रीज वेयर सर्विंग द आर्म फोर्सेस इज कंपलसरी. इंडिया में ऐसा नहीं है. ठीक है, सो इट्स द लार्जेस्ट वॉलेंट्री फोर्स एंड सेकंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड. हेडक्वार्टर्स इज दिल्ली, न्यू दिल्ली, विच इज द कैपिटल ऑफ कोर्स. द मोटो इज सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म. ठीक है, and there are two march, quick march and slow march. When, so this will be very 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 beautiful for you when you attend the pop, or I won't say attend, I would say when you are a part of the passing out parade. So when you will be a part of the passing out parade, I still remember when I was in OT, Officers Training Academy in Chennai. So SSC 114 course, our super senior course was passing out. Okay, and it's good to see all those things on YouTube and all. But when I saw that in person, okay, the slow march and the quick march of the Indian Army, it was a very very different feeling. Okay, especially for civilians, this is a completely different feeling. ठीक है, तो ये जो तुम्हारा स्लो मार्च और जो क्विक मार्च है, ये अलग अलग ओकेजन्स पे किया जाता है. So the quick march is Kadam Kadam Badhaya Ja. So this is also one song which all the passing out cadets sing during the passing out parade. ठीक है, इसको ऑफिशियली एक आर्मी सॉन्ग की तरह भी तुम समझ सकते हो. तो सारे सब मिलके एक फ्लो में एक जोश के साथ ये गाना गाते हैं, एंड दैट फीलिंग अगेन, टू विटनेस दैट इज अ completely different feeling. Okay. Now, Army Day is celebrated on 15th of January. Okay, to remember the occasion when Lieutenant General K.M. Kariappa, now he is Field Marshal K.M. Kariappa, took over the command of Indian Army as the first Indian Commander in Chief. Now this is very important. Many of you get confused in this. ठीक है, अगर कोई तुम्हें पूछता है कि who is the first Field Marshal, then it is Field Marshal Sam Manekshaw. ठीक है, he is the first Field Marshal. But who is the first Indian Commander in Chief? Indian Commander in Chief. ठीक है, कि Indian Chief कौन था सबसे पहले? Because after independence, for some time, the Commander in Chief was still a Englishman. ठीक है, but the first Indian Commander in Chief was Field Marshal K.M. Kariappa. At that time, he was Lieutenant General. Later, he was promoted to Field Marshal. So we have two Field Marshals. ठीक है, India has two Field Marshals. Field Marshal क्या होता है? 5 स्टार रैंक होती है. ठीक है, तो एज यू कैन सी, पहले नहीं होता था, बट अभी क्या है कि यहाँ पे स्टार्स होते हैं. ऑल द स्टार रैंक्ड ऑफिसर्स आफ्टर ब्रिगेडियर हैव अ स्टार ओवर ईयर. पहले नहीं था ये. ठीक है, तो ये मत बोलना कि फोटो गलत है. फोटो गलत नहीं है, पहले ऐसा नहीं था. ठीक है, so we have two field marshals. First field marshal is Field Marshal Sam Manekshaw. Second is Field Marshal K.M. Kariappa. But Field Marshal K.M. Kariappa was the first Indian commander in chief. ठीक है, तो ये difference याद रखो. Now next, this is a very important slide for you guys. In fact, this and the next one structure. So the ranks and insignia. Now there are three categories: commissioned officers, JCOs, junior commissioned officers, and NCO, non-commissioned officers. ठीक है, इनको JCOs बोलते हैं जनरली, और ये तुम्हारे NCOs. ठीक है. Now see, many people feel कि हम तो ऑफिसर बनने जा रहे हैं, so why do we need to learn the JCO ranks or the NCO ranks? So this is a very 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 wrong mindset. Okay, let me be very frank with you. अगर ऐसा सोच रहे हो तो आज ही इस थॉट को हटा दो, क्योंकि if you, let's say you are an officer, you should know who or whom you are commanding. ठीक है, तुम्हारे जो JCOs है, NCOs है,
तुम किसको कमांड करोगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रैंक स्ट्रक्चर. एंड इवन बिफोर गोइंग यू शुड नो. इट्स नॉट लाइक कि आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर, आई विल रीड ओनली अबाउट ऑफिसर्स. ऐसा नहीं है. ओके. द यंगेस्ट परमवीर चक्र ऑफ इंडियन आर्मी was Grenadier Yogendra Singh Yadav. Later, he was promoted to Subedar Major and honorary captain. He retired as honorary captain. He was NCO. ठीक है. So obviously there is no need for me to justify the importance of JCOs and NCOs in the army. ठीक है. तो तुम्हें सारे रैंक्स पता होनी चाहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में तुम जाना चाहते हो उसके. ठीक है. द इंटरव्यूइंग ऑफिसर माइट आस्क यू फर्स्ट फॉर द कमीशन ऑफिसर्स. वंस यू टेल देम दिस, देन दे विल आस्क यू अबाउट जेसीओ एनसीओ एज वेल. और ये पूछते हैं, सच में पूछते हैं. ठीक है. मुझे भी पूछा गया था व्हेन आई वाज इन एसएसबी इलाहाबाद. सो फर्स्ट दे आस्क्ड मी अबाउट द ऑफिसर रैंक्स. सो मैंने एकदम जोश में अच्छे से बता दिया, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर एंड सो ऑन टिल फील्ड मार्शल. ठीक है. पूरा फील्ड मार्शल तक बताना है. ओके. एंड द स्टार रैंक ऑफिसर स्टार्ट फ्रॉम ब्रिगेडियर. ठीक है. सो ब्रिगेडियर इज 1 स्टार. ठीक है. तुम्हारे कॉलर पे होता है जैसे मैंने पिछले फोटो में दिखाया था. मेजर जनरल इज 2 स्टार. लेफ्टिनेंट जनरल इज 3 स्टार. जनरल इज 4 स्टार एंड फील्ड मार्शल इज 5 स्टार. ठीक है. जनरल इज द आर्मी चीफ. आर्मी चीफ इज ऑफ द रैंक जनरल. पहले लेफ्टिनेंट जनरल होते थे कुछ सालों तक, बट नाउ इट्स जनरल. एंड ऑल्सो द सीडीएस इज ऑफ दिस रैंक. ठीक है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी का होगा, so that officer will be also be having that officer will also be जनरल रैंक ऑफिसर. ठीक है. करंटली जो दोनों सीडीएस हो चुके हैं इंडियन आर्मी में, बोथ आर जनरल रैंक ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी ओनली. ठीक है. अब तक हमें एयरफोर्स या नेवी का कोई सीडीएस नहीं मिला है, बट टिल नाउ वी हैव सीडीएस फ्रॉम द आर्मी ओनली एंड बोथ ऑफ देम हैव बीन ऑफ द रैंक ऑफ जनरल. ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तुम्हें ये रैंक्स याद नहीं होते हैं ना, सो डोंट ट्राई टू मग इट अप. ठीक है. डोंट ट्राई टू मग इट अप. रीड द स्टोरीज. ठीक है. रीड स्टोरीज अबाउट द इंडियन आर्मी. रीड अबाउट दी वॉर. रीड वॉर स्टोरीज आई वुड से. ठीक है. ऑपरेशंस के बारे में पढ़ो. अभी एक मूवी आ रही है. इट्स अ तमिल मूवी बट इट विल बी डब्ड इन मेनी लैंग्वेजेस अबाउट मेजर मुकुंद वरदराजन. ठीक है. वो मूवी देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि मेजर कौन होता है, मेजर का क्या रोल होता है, फील्ड रोल क्या होता है मेजर का. ठीक है. एंड लेट मी टेल यू द प्रमोशन इज लाइक आफ्टर लेफ्टिनेंट इन 2 years यू बिकम कैप्टन. आफ्टर कैप्टन इन 6 years यू बिकम मेजर. ठीक है. मतलब टोटल 6 years. तो कैप्टन से मेजर बनने के लिए यू नीड 4 years. तो 2 + 4 टोटल यू नीड 6. आफ्टर मेजर टिल लेफ्टिनेंट कर्नल यू हैव टू सर्व फॉर अनदर 6 years विच इज टोटल 12. ठीक है. एंड आफ्टर दिस for kernel there are two. One is time scale and another is based on your performance. ठीक है. एंड आफ्टर ब्रिगेडियर इट्स ओनली परफॉर्मेंस. ठीक है. तो जैसे तुम्हारे अभी एसएसबी है वैसे ही वहां पर भी एक प्रमोशन बोर्ड होता है. बट अगेन दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट द रैंक स्ट्रक्चर. यू शुड नो अबाउट दिस ऑल्सो. सो अ यंग सिपाही joins as a sepoy, or you can simply say sipahi in Hindi, then lance naik, naik, havaldar. So I had been asked this question in the same SSB Allahabad कि ये जो 3 स्ट्राइप्स है ये कौन से रैंक के होते हैं. ठीक है. सो इट्स हवलदार. मुझे ये भी पूछा था कि लेफ्टिनेंट जनरल का इंसिग्निया क्या होता है. ठीक है. सो इंसिग्निया इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इंसिग्निया क्या होता है? शोल्डर बैजेस. ठीक है. जो शोल्डर पे पहनते हैं ना, दैट इज इंसिग्निया. बट एक चीज याद रखना कि द जेसीओज एंड द कमीशनड ऑफिसर्स ये शोल्डर पे पहनते हैं. ठीक है. शोल्डर टैब बोलते हैं उसको. बट द एनसीओज डो नॉट वेयर इट ऑन शोल्डर टैब्स. ठीक है. वो कहाँ पहनते हैं? वो उनके आर्म्स पे. ठीक है. आर्म्स मतलब हाथ पे. ठीक है. माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड, वरना मैं तुमको ड्रॉ करके बताता. तो जो तुम्हारी स्लीव होती है, स्लीव पे यहाँ तक तुम्हारा शर्ट है, तो शर्ट पे यहाँ पे पहनते हैं वो. ठीक है. ये याद रखना. एंड ऑफिसर्स एंड जीसीओज वेयर इट ऑन देयर शोल्डर टैब्स. ठीक है. तो इंसिग्निया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मुझे हवलदार और लेफ्टिनेंट जनरल का इंसिग्निया पूछा गया था. ठीक है. तो ये याद रखना. Now the next thing, again this is very very important for you, the structure. So they will generally ask you कि what is the structure of the Indian Army, what are the commands. ठीक है. कमांड्स पूछ सकते हैं तुम्हें. उन कमांड्स के हेडक्वार्टर्स क्या है पूछ सकते हैं. इनफैक्ट कमांड्स का बाइफर्केशन कैसा है.
So there are six operational commands and one training command. ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे, इसको जनरली क्या कहते हैं, आर ट्रैक। ठीक है, तो आर ट्रैक कहाँ पे है, इट्स इन शिमला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, काफी बढ़िया जगह है। यू ऑल नो शिमला, सबको घूमने जाना होता है वहां पे, तो बहुत इजी है याद रखने के लिए। आर ट्रैक इज इन शिमला। ठीक है, आई एम फ्रॉम पुणे, सो आई हैव सी अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सदर्न कमांड इन पुणे, एंड ट्रस्ट मी इट्स सो नाइस। वेन एवर द आर्मी ट्रक कम्स, या कोई भी हायर रैंक ऑफिसर्स की जो मूवमेंट होती है उस टाइम पे, जो आर्मी का मूवमेंट होता है व्हीकल्स का, इट्स सो नाइस टू सी, यू नो, द वे दे कंट्रोल द ट्रैफिक, सो दे डोंट रिलाई ऑन अदर्स। ठीक है, अगर उन्हें मूवमेंट करना है, वो खुद सिविलियंस का भी ट्रैफिक हैंडल करके दे मेक वे फॉर द ऑफिसर्स एंड ऑल। ठीक है, इट्स रियली नाइस टू बी ऑनेस्ट। समटाइम्स दे आस्क यू व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस सदर्न वेस्टर्न, अबाउट दे आस्क यू बोथ सदर्न वेस्टर्न एयर कमांड का भी पूछ सकते हैं एयरफोर्स वालों को, एंड साउथ वेस्टर्न कमांड का भी पूछते हैं टू दी आर्मी। ठीक है, जो आर्मी एसएसबी है, एस्पिरेंट्स है उनको। ठीक है, सो इसका ढूंढना कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट स्वैक और व्हाट इज स्पेशल अबाउट सदर्न साउथ वेस्टर्न कमांड। ठीक है, ये एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जो मुझे नहीं लेकिन एक दूसरे मेरे दोस्त को पूछा गया था। ठीक है, एसएसबी में यू हैव नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड एंड सेंट्रल कमांड। ये पांच तो तुम आराम से याद रख सकते हो ना, नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल। ये पांच तो तुम आराम से याद रख सकते हो। उस पांच के अलावा यू हैव ट्रेनिंग कमांड एंड यू हैव साउथ वेस्टर्न कमांड। ठीक है, सो देयर इज नथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस, बस तुम्हें हेडक्वार्टर्स अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू अ मैप आल्सो, सो दैट विजुअल मेमोरी के साथ भी तुम इसको याद रख सकते हो। ठीक है, दिस इज द फ्लैग ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, एंड ही इज द आर्मी चीफ। क्या नाम है इनका, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, he is the army chief, he took over from general Manoj Pandey. Now there is something very interesting about general Manoj Pandey, जिनसे इन्होंने, you can say he passed on the baton to him. So there is something very interesting about him which I will be telling you as we go ahead in this video. ठीक है, ये दोनों चीजें ऑफ कोर्स तुम्हें पूछेंगे नहीं कि फ्लैग कैसा दिखता है, बट यू शुड नो, यू शुड हैव सीन इट, and they might ask you who is the army chief. So of course you should know about the army chief. In fact, all the three chiefs and the CDS. It's very important for you to know. ठीक है, नाउ दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को तुम्हें एकदम से रटना नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड नो ब्रीफ, यू शुड हैव अ ब्रीफ आइडिया। ठीक है, सो एज वी सॉ देर आर सिक्स ऑपरेशनल कमांड्स। ठीक है, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ये सिक्स लिखा हुआ है, ऑपरेशनल कमांड्स। इट्स कमांडेड बाय जीओसी इन सी। जीओसी इन सी मतलब जनरल ऑफिसर कमांडर, कमांडिंग इन चीफ। ठीक है, इज द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। तो तीन स्टार दिख रहे हैं यहाँ पे, तो थ्री स्टार्स मतलब समझ जाओ कि इट्स द rank of lieutenant general. ठीक है, I'll use another color for you to read it. ठीक है, तो तीन स्टार है, लेफ्टिनेंट जनरल है, और जीओसी इन सी फॉर द ऑपरेशनल कमांड। तो सारे कमांड के जो चीफ्स होते हैं वो कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। पूरे आर्मी का चीफ कौन है, जनरल। ठीक है, फोर स्टार एज आई टोल्ड यू। आर्मी ट्रेनिंग कमांड अगेन द चीफ इज लेफ्टिनेंट जनरल, थ्री स्टार। इनसाइड कमांड यू हैव कोर। ठीक है, अब इसको बहुत लोग कॉर्प्स कॉर्प्स बोलते रहते हैं, इट्स नॉट कॉर्प्स, इसको बोलने के लिए हम बोलते हैं कोर। ठीक है, द you can say the way you pronounce it is core. ठीक है, so core commander is always again a lieutenant general. ठीक है, there are many famous personalities who are retired जिनकी तुम बुक्स भी पढ़ सकते हो। You have Lieutenant General Satish Dua, Lieutenant General KJS Dillon, उनकी बुक्स पढ़ोगे you will get to know more about their role, कि एक कोर कमांडर का रोल क्या होता है। ठीक है, now core commander, a corps consists of 3 to 4 divisions. ठीक है, a division is commanded by major general which consists of 3 4 more brigades. अब एक ब्रिगेड क्या होता है, कमांडेड बाय ब्रिगेडियर, वन स्टार जनरल। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज में इसको ब्रिगेडियर जनरल भी बोलते हैं। इन इंडिया वी कॉल इट ब्रिगेडियर, सम कंट्रीज यूज इट एज अ रैंक ऑफ ब्रिगेडियर जनरल। ठीक है, तो वन स्टार रैंक ऑफिसर है, एंड a brigade consists of 3 battalions and some support elements. Support elements क्या है बेसिकली, योर आर्मी सर्विस कोर। ठीक है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। ठीक है, this can be your support elements. Combat support में you have artillery, EME, signals, army air defense.
ईएमई के साथ साथ बेसिकली दीज आर योर टेक्निकल आर्म्स, ठीक है। ये दोनों तुम्हारे टेक्निकल आर्म्स, ईएमई एंड सिग्नल्स। ईएमई क्या है? इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है, कोर ऑफ इंजीनियर्स भी आता है। एंड इन कॉम्बैट यू हैव ओनली थ्री। बहुत सारे लोग आर्टिलरी को कॉम्बैट में डाल देते हैं। दिस इज द कंफ्यूजन मेनी पीपल हैव, बट दैट इज रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे नहीं होता है। आर्टिलरी इज इन कॉम्बैट सपोर्ट, ठीक है। इन्फेंट्री क्वीन ऑफ द वॉर कहते हैं, आर्टिलरी गॉड ऑफ द वॉर कहते हैं, इफ यू नो। सो इन कॉम्बैट यू हैव ओनली थ्री: इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड आर्मर्ड कोर। आर्मर्ड कोर कौन है? टैंक वाले, ठीक है, दे हैव टैंक्स। आर्मर्ड कोर में जाने का सबसे बड़ा मोटिवेशन बहुत लोगों को क्या होता है पता है? कि उनकी यूनिफॉर्म ब्लैक होती है, ऑलिव ग्रीन नहीं होती, पूरी ब्लैक होती है, ठीक है। सो आफ्टर ब्रिगेड यू हैव योर बटालियंस, ठीक है, और योर इन्फेंट्री यू हैव योर रेजिमेंट्स, ठीक है। विच इज कमांडिंग ऑफिसर इज द कर्नल रैंक ऑफिसर, जिसमें चार राइफल कंपनीज होती है। इन एवरी कंपनी यू हैव थ्री प्लाटून्स। प्लाटून्स में सेक्शंस होते हैं, एंड सेक्शन इज कमांडेड बाय हवलदार, ठीक है, और सम जेसीओ, ठीक है। इट कैन बी हवलदार और जेसीओ ऑल्सो, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर एक बार पूरा देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यू माइट बी आस्क्ड कि प्लाटून कमांडर कौन होता है। सो प्लाटून का कमांडर कौन होता है? इट कैन ईदर बी अ लेफ्टिनेंट कर्नल और अ मेजर, ठीक है। इन योर एकेडमी व्हेन यू गो, यू विल हैव कंपनीज, ठीक है। तो कंपनीज जैसे आई वाज इन नौशेरा कंपनी, तो नौशेरा कंपनी का जो कंपनी कमांडर होगा, ही विल बी अ मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल, ही और शी, ठीक है, कैन बी ही और शी। तो द कंपनी कमांडर इज योर लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। सो बिसाइड्स देर आर टू जॉइंट कमांड्स, ठीक है। आजकल यू नो there's a lot of talk about joint commands and theater commands. One is the strategic forces command, which controls the nuclear and strategic assets. One is the Andaman Nicobar command, which is headquartered in Port Blair. तो पोर्ट ब्लेयर क्या है? इट्स हेडक्वार्टर्ड इन पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। A core can be categorized in strike, offensive core और holding mountain core. तो holding मतलब this is more for your defense, this is your offense. तो इसमें भी तीन कैटेगरीज होती है, ठीक है। वन इज ऑफेंसिव, वन इज डिफेंसिव, एंड तीसरा क्या है? नाउ तीसरा क्या है ये सोचना, ठीक है। यू कैन से सर्जिकल स्ट्राइक्स कम्स अंडर द थर्ड कैटेगरी, ठीक है। इट्स नीदर इन ऑफेंसिव और इन डिफेंसिव, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिफेंसिव ऑफेंस, उसमें आता है, ठीक है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट, ठीक है। So presently, Indian Army has 37 divisions, including four rapid organized army, reorganized army plane infantry divisions, 18 infantry divisions, 10 mountain divisions, three armored, two artillery divisions, and so on. ठीक है। तुम डिवीजन कितना बड़ा है तुम यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, कि डिवीजन के अंदर क्या क्या आता है। 3 से 4 ब्रिगेड होती है, हर ब्रिगेड में इतने इतने लोग होते हैं, सो ऑन, ठीक है। अ सेक्शन इज कंसिस्टिंग ऑफ 10 पीपल। तो इसको तुम अगर मल्टीप्लाई करते जाओगे तो तुमको पता आइडिया लगेगा कि डिवीजन में एग्जैक्टली कितने लोग होते हैं, ठीक है। सो एंड ऑफ कोर्स दिस कैन वेरी, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, दिस इज आस्क्ड अ लॉट इन योर एसएसबी, ठीक है। सो ये कैसे पूछेंगे? इनडायरेक्टली पूछेंगे, कैसे? दे माइट आस्क यू कि विच आर्म डू यू वांट टू ज्वाइन, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि सर इन्फेंट्री या आर्मर्ड या वॉट एवर, देन दे विल आस्क यू व्हाट आर द वेपन्स विच आर देयर इन द इन्फेंट्री ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। तब तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से वेपन्स इंडियन आर्मी यूज करती है, ठीक है। सो इंसास राइफल इज इंडियन। यहाँ पे जहां पे भी मैंने इंडिया का फ्लैग लगा के रखा है, दैट मीन्स इट्स ओरिजिन इज इंडिया, ठीक है, ओरिजिन कंट्री इज इंडिया, ठीक है। सो इंसास राइफल इंडियन है, AK-203 रशियन, ठीक है। सो व्हेन आई वाज इन ओटीए, तो तब हमने इंसास यूज किया था। व्हेन आई वाज इन एएफए, वी हैड यूज्ड AK-203, एंड ट्रस्ट मी, AK-203 सच अ स्मूथ राइफल। मतलब लेमैन टर्म्स में अगर मैं तुमको बताऊं, तो इतनी स्मूथ है राइफल, और अलग ही आई वुड से फील था टू यूज दिस AK-203। देयर वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ यू कैन से, आजकल के तुम्हारे लैंग्वेज में कहूँ तो, वाइब ऑफ द राइफल, ठीक है। So it's really nice. Okay, the AK-203 rifle really powerful, really smooth, and it's very fine tuned. ठीक है, बहुत refined है. Insas is Indian rifle. Again, this was
वेरी वेरी गुड राइफल. ठीक है. तो when we had our uh, classification, when we had our exams, shooting, तो we had used. So ये दोनों राइफल्स मैंने चला के देखी है. To be honest, it's really good. You will also get that experience once you go in the training. ठीक है, in any of the academies. ठीक है. Now we have other rifles in the infantry. We have from Israel, from US, from Taiwan. These are assault rifles. ठीक है. From armored, so armored as I told you, टैंक्स होती है. तो दीज आर एमबीटी. ठीक है, इनको एमबीटी कहते हैं, मेन बैटल टैंक. सो वी हैव अर्जुन एमबीटी, इंडियन ओरिजिन अगेन. इंडिया में वैसे टैंक्स कौन बनाता है? या कंपनी एल एन टी, अगर तुमने सुना होगा. ठीक है. सो एल एन टी, आई वॉज वर्किंग इन एल एन टी, एंड एल एन टी हैज अ लॉट ऑफ, यू कैन से, रिटायर्ड ऑफिसर्स एज वेल. ठीक है. तो एक अलग ही, आई वुड से, एनवायरमेंट होता है, एटमोसफियर होता है व्हेन यू वर्क इन अ कंपनी विच supplies, you can say, arms and machinery to the Indian Armed Forces. Okay, it's a really good and a different feeling. So T90 भीष्म. सो ये जो, देखो, ये जो नाम है ना, भीष्म, अजय, तुमको लगेगा कि यार ये तो इंडियन नेम है, बट ओरिजिन रशिया है, सोवियत यूनियन है, ऐसा कैसे? तो क्या होता है कि वेन एवर वी मशीनरी procure a machinery from another country, we have some modifications which are catering to Indian requirements. तो एंड दैट इज व्हेन वी पुट देयर डिफरेंट नेम्स ऑल्सो. तो ये जो भीष्म, अजय, ये सब नाम है, ये हम रखते हैं उसका. बट इनका ओरिजिन जो होता है वो रशिया या दूसरे कंट्रीज का होता है. तो वहां पे वो लोग उसको T90, T72 ऐसा बुलाते हैं. व्हेन वी मेक आवर ओन कस्टमाइजेशंस, और यू कैन से आवर ओन modifications we do in layman terms. So you name it something like this. And then there is Zorawar light tank. Again, it's Indian origin. Mechanized infantry, you have BMPs, ठीक है, you have IFV, FICV, ठीक है. तो FICV क्या है? दिस इज अ सिस्टम, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल सिस्टम. ठीक है. यू हैव अभय IFV. यहाँ पे तुम, मैंने सारथ का फोटो दिखाया तुमको, विच इज द BMP. ठीक है. तो ये तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक है. इसका तुम देखना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमपी, व्हाट इज एपीसी, ठीक है, व्हाट इज आईएफबी, एफआईसीवी का मैंने तुम्हें बता दिया. ठीक है, एक चीज मैंने तुम्हें बता दी. ठीक है. नाउ आर्टिलरी. सो आर्टिलरी में यू हैव गन्स. तुमने बोफोर्स सुना होगा. मेनी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड बोफोर्स. क्या था बोफोर्स? कुछ याद आ रहा होगा अगर, इफ यू कैन रिकलेक्ट समथिंग. नाउ वी हैव, करंटली वी हैव शारंग फील्ड गन, धनुष, टोड, होविट्जर. वी हैव K9 वज्र. ठीक है. तो K9 वज्र का जो ओरिजिन वो कोरिया से है, बट अगेन यू कैन सी देर इज एन इंडियन नेम, तो हमने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है. ठीक है. सो दीज आर सम इमेजेस ऑफ फील्ड गन्स. दिस इज योर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड दिस इज योर आर्मर्ड, दिस इज योर इन्फेंट्री राइफल. अब मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होता क्या है बाय द वे? सो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इज नॉट एग्जैक्टली एज आर्मर्ड कोर. मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री क्या होता है? यू हैव व्हीकल्स विच हैव माउंटेड गन्स. ठीक है. व्हीकल्स विथ माउंटेड गन्स. ठीक है. दैट इज बेसिकली मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री. ठीक है. आर्टिलरी में यू हैव फील्ड गन्स, यू हैव होविट्जर्स. ठीक है. So this is the, so you should know. They can ask you questions like which are the weapons or the machinery which India has produced or what is from Indian origin. तो उसमें जहां पर भी इंडिया का फ्लैग मैंने लगाया है, तो वो तुम बता सकते हो. ठीक है. यहाँ पे कुछ फोटोज है. ठीक है. इंसास का है, AK का है. वैसे इंसास के और भी अलग वो है. ठीक है. इंसास इज नॉट द नेम ऑफ वन राइफल ओनली. ठीक है. इट्स काइंड ऑफ द कैन से सिस्टम. ठीक है. उसमें फिर अलग अलग राइफल्स. Now coming to the technical arms. Now I had told you something I will be telling you unique about General Manoj Pandey. So General Manoj Pandey was the first army chief. Okay, the first army chief who was from technical arms. ठीक है. So you have written over here. General Manoj Pandey was the first officer from the Corps of Engineers to become the chief of army staff. इसके पहले जितने भी आर्मी चीफ थे, सारे के सारे कहाँ से थे? इन्फेंट्री. ओके. ही वॉज द ओनली वन एंड द फर्स्ट वन till now who was from the Corps of Engineers. ठीक है. So what is the role of Corps of Engineers? They lay minefields. ठीक है. माइंस तुम देखते हो ना, यू मस्ट हैव सीन द मूवी बॉर्डर. तो बॉर्डर में माइंस को लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. वो क्या करते हैं, जब माइंस उनके पास कम हो जाते हैं, तो व्हाट दे डू इज
इनफैक्ट इट्स नॉट अबाउट इंजीनियर्स बट पंजाब रेजिमेंट करता है। तो व्हाट दे डू इज टिफिन बॉक्स को वो एज अ माइन, ऐसा दिखता माइन है वैसे वो टिफिन बॉक्स को जमीन में गाड़ देते हैं। तो दुश्मन को क्या लगेगा कि वो माइन है, तो दे विल नॉट स्टेप ऑन इट और दे विल बी वेरी केयरफुल, बट एक्चुअली में माइन होगी नहीं। So that was some very unique idea and you can say presence of mind which they had shown. So what does Corps of Engineers do? They lay minefields, then constructing and destroying bridges. अब ये destroying क्यों? Construct किसके लिए करेंगे? अपने लिए। Destroy किसके लिए? Enemy के लिए, है ना? अगर enemy movement को रोकना है तो क्या करोगे? Bridges को destroy करोगे, enemy आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना? So constructing bridges for troop movement and destroying to restrict the troop movement. ठीक है, simple. Like modular bridge, suspension bridge, Bailey bridge. ठीक है, so these are different kinds of bridges. Now this was very very significant और ये काफी you can say recent news है. If you have following the news, you will know कि there was a 70-foot Bailey bridge which was constructed in only 72 hours. ठीक है, 72 आवर्स में ये काम किया था इंडियन आर्मी ने। ठीक है, तो इंडियन आर्मी की एक देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ब्रो बोलते हैं प्यार से। ठीक है, वैसे उसका शॉर्ट फॉर्म ही आता है ब्रो। तो ब्रो इज एक्चुअली, ब्रो कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एमओडी के अंडर ही आता है बीआरओ। एंड बीआरओ वर्क्स विद इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के जो टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं दे वर्क विद बीआरओ एंड दे डू ऑल द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस इन एरियाज जहाँ पे नॉर्मल सिविलियन जाने का भी नहीं सोच सकते, वहां पे ये लोग जाके कंस्ट्रक्शन करते हैं। वेयर इन JNK, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो those areas of the country where even going is very difficult. So you can see these photos, ठीक है, कि how they do it. So this is kind of a modular bridge system. यहाँ पे ये ऐसे ब्रिज होते हैं जिनको तुम फटाक से बना सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई भी गैप ब्रिज करना है तो यू कैन यूज दिस। ठीक है, नाउ कोर ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, अनदर टेक्निकल आर्म। कोर ऑफ सिग्नल्स इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द इंडियन आर्मी। कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ साथ जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि दे आर वेरी मच वर्किंग ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ साइबर वॉरफेयर, क्योंकि नाउ मोर देन योर इन्फेंट्री एंड एवरीथिंग, साइबर वॉरफेयर इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी बताया कि साइबर वॉरफेयर इज गोइंग टू बी, इनफैक्ट इट इज द फ्यूचर ऑफ द armed forces across all the countries. It's not only about India. ठीक है, सो साइबर ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इस पे भी काफी ज्यादा फोकस करती है कोर ऑफ सिग्नल्स। कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो दे हैड स्टार्टेड फ्रॉम रूडिमेंट्री सीमाफोर। सीमाफोर क्या होता है? बेसिकली इट्स अ वेरी टेक्निकल टर्म। जो कंप्यूटर इंजीनियर्स है उन्हें पता होगा सीमाफोर। इनफैक्ट कंप्यूटर इंजीनियर्स हैव अ वेरी वेरी गुड स्कोप इन सिग्नल्स। अगर मैं ऑप्ट करता तो शायद मैं भी सिग्नल्स के लिए ही ऑप्ट करता। माई फर्स्ट चॉइस वुड हैव बीन कोर ऑफ सिग्नल्स। सो आई एम ऑल्सो कंप्यूटर इंजीनियर, so when I was in OTA I would have opted for signals. ठीक है, unfortunately I could not do that because of some reasons I had to uh, come back, medical reasons and all. But if I was in the army, my first preference would have been signals, and this was again a very 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 highlight in the passing out parade. So passing out parade में Daredevils team है, signals, core of signals की Daredevils team है। दिस इज यूनिक टू द कोर ऑफ सिग्नल्स ऑफ द आर्मी। ये कोई और आर्म या रेजिमेंट नहीं करता है। Daredevils team, so they are a team of bikes and they do stunts। ठीक है, और तुम देख सकते हो कैसे खतरनाक एंड इंटरेस्टिंग स्टंट्स करता है। तो यू मस्ट हैव सीन रिपब्लिक रिपब्लिक डे परेड। तो रिपब्लिक डे परेड में भी बहुत सारे बाइक के स्टंट्स वगैरह होते हैं। सो दिस इज द डेयरडेविल टीम ऑफ द कोर ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, हियर यू कैन सी द फ्लैग ऑफ आर्मी, हियर यू हैव द इंडियन फ्लैग एंड हियर यू हैव द फ्लैग ऑफ द सिग्नल्स, कोर ऑफ सिग्नल्स। तो ये तीन फ्लैग्स लेके कितने सारे बाइक्स है, एक दो तीन चार, सो मेनी बाइक्स आर देयर एंड दे आर गोइंग इन सिंक। ठीक है, अगर एक भी बाइक थोड़ी आगे पीछे हो जाती है तो तुम देख रहे हो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हिल सकता है। सो इमेजिन द काइंड ऑफ यू कैन से प्रैक्टिस एंड द काइंड ऑफ सिंक दे नीड टू मेंटेन। सिंक्रोनाइजेशन और यूनिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि इट बिकम्स अ मसल मेमोरी फॉर यू। ठीक है, अब इस बंदे को नहीं पता कि इस बंदे ने कौन सी स्पीड रखी है, ये लास्ट है ये फर्स्ट है। ठीक है, बट दे आर मैचिंग ईच अदर स्पीड। क्यों?
क्योंकि ये बंदा इसकी स्पीड मैच करेगा, ये बंदा इसकी, ये बंदा इसकी, ऐसे करते करते लास्ट बंदे तक सब लोग ने स्पीड मैच करनी चाहिए, तभी जाके एक प्रॉपर फॉर्मेशन में दे कैन गो अहेड। ठीक है। नाउ दीज आर द, एज यू कैन सी, ट्रांसपोर्टेबल सैटेलाइट टर्मिनल ऑफ द कोर ऑफ सिग्नल्स, एंड दिस इज द मोबाइल बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन। ठीक है, तो ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं। Those who are in the computer engineering branch or electronics branch, for them it's very important to know about the core of signals। ठीक है। मोटो, मोटो हर चीज का याद रखना। ठीक है, मैंने हर जगह ना मोटो लिख के रखा है, because motto is asked a lot. So they will ask you कि which regiment do you want to join? If you say sir I want to join signals, then they'll ask you what is the motto of signals, what is the role of signals। तो किसी भी, अगर तुम आर्म को ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो उस आर्म का रोल और मोटो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि उनका काम क्या है और उनका मोटिवेशन क्या है, एक तरह से व्हाट इज द मोटो ऑफ देम। ठीक है। तो जैसे यू शुड नो बोथ। जनरली मोटो इज इन हिंदी, तो यू शुड नो द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑल्सो। तीव्र चौकस, स्विफ्ट एंड सिक्योर। ठीक है, दैट इज द कोर ऑफ सिग्नल्स फॉर यू। नाउ कमिंग टू द आर्मी मेडिकल कोर। सो आर्मी मेडिकल कोर, एज आई टोल्ड यू, इज अ वेरी वेरी स्पेशल ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है। Now, so their task is to primarily provide medical services to all the army personnel serving veteran and their families। ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था बाय ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। ही, एज आई टोल्ड यू, रोज अप टू द रैंक ऑफ सूबेदार मेजर एंड लेटर honorary captain. He retired as honorary captain, youngest Paramveer Chakra of India। तो he had given a statement in one of his interviews कि जो श्रीनगर का बेस हॉस्पिटल है ना, तो वहां पे इतना ज्यादा ट्रस्ट है ट्रूप्स को, आर्मी डॉक्टर्स पे, कि दे सी कि अगर हम इस हॉस्पिटल में जिंदा आए हैं तो हम यहाँ से जिंदा ही वापस जाएंगे। देर इज नो चांस कि हम अंदर जिंदा आए और जाएंगे हम, यू नो, वी विल गो आफ्टर, विल नॉट, बेसिकली विल लूज आवर लाइफ एंड गो आउटसाइड। नो चांस। ठीक है। सो ये एक बहुत ही ट्रस्ट फैक्टर है ट्रूप्स का, कि अगर हम हॉस्पिटल में जिंदा आए हैं तो हम पूरा ठीक होकर ही वापस जाएंगे, घर वापस पक्का जाएंगे। ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ आवर ब्रेव मेडिकल ऑफिसर्स। सो एज यू कैन सी मरून बेरे ओवर हियर। अब तक हमने ये पॉइंट टच नहीं किया है, बट विल बी टचिंग। सो मरून बेरे इज गिवन ओनली टू स्पेशल फोर्सेस। सो यू कैन सी मेजर साहब पैरा में है। ठीक है, एंड ही इज अ डॉक्टर। ठीक है। सो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्पेशल ऑपरेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है। सो यू कैन सी इन रिलीफ ऑपरेशंस आल्सो दे वर्क। ऑफ कोर्स रिलीफ ऑपरेशंस पे जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में, तुमको याद है, रोल में हमने मेडिकल सप्लाईज और मेडिकल टीम की बात की थी आर्मी का। ठीक है। सो आर्मी मेडिकल कोर डज ऑल द, यू कैन से, नेसेसरी ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द रिलीफ ऑपरेशंस। ठीक है। नाउ वी हैव वेरी interesting, you can say, officers from the medical corps। You can see over here Surgeon Vice Admiral Punita Arora, PVSM, SMVSM। She is the first woman officer to be promoted to a 3-star rank in the Indian Armed Forces। याद रखना, आर्म्ड फोर्सेस लिखा है यहाँ पे, अक्रॉस ऑल द थ्री सर्विसेज। मैम वॉज द फर्स्ट वन टू बी प्रोमोटेड टू अ 3-स्टार रैंक। बट अब तुमको दिखेगा कि सर्जन वाइस एडमिरल लिखा है, मतलब शी इज फ्रॉम द इंडियन नेवी, बट यहाँ पे शी इज वेयरिंग द यूनिफॉर्म ऑफ इंडियन आर्मी। So the Army Medical Corps is the unique corps, which is the only corps which has the, you can say, privilege, or you can say choice, or you can say they can serve in all the three forces। ठीक है, जब उनकी पोस्टिंग आती है, so they can have postings from the army to the air force to the navy, vice versa, in any order। ठीक है, ऑर्डर ऐसा फिक्स नहीं है, बट इन एनी ऑर्डर दे कैन हैव द सर्विस। ठीक है। So ma'am retired from the Indian Navy, so that's why she had the rank of Surgeon Vice Admiral. But she was also a Lieutenant General in the army। You can see 3 stars over here on the collar. So she was also a Lieutenant General। ठीक है। From the Air Force, it was Air Marshal Padma Bandyopadhyay, PVSM, AVSM, VSM Padma Shri। She was the first woman officer from the Indian Air Force who was promoted to the rank of Air Marshal। ठीक है। तो ये रैंक स्ट्रक्चर तुम्हें आर्मी का तो अब तक पता चली गया है, लेफ्टिनेंट जनरल की क्या रैंक होती है। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल इक्विवेलेंट इन द एयरफोर्स इज एयर मार्शल, एंड इक्विवेलेंट इन दैट इज वाइस एडमिरल इन द इंडियन नेवी। ठीक है। हम एयरफोर्स और नेवी के जब वीडियोस आएंगे,
उनका भी रैंक और इंसिग्निया देखेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए तुमको ये जानना काफी जरूरी है। देन देर इज वन मोर, लेफ्टिनेंट जनरल कानिटकर, ठीक है। सो यू नीड यू रीड अबाउट हर ऑल्सो, ठीक है। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी एंड अ वेरी वेल नोन ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन आर्मी। तो तुम्हारा होमवर्क है, मैंने तुमको दो दो ऐसे ऑफिसर्स के बारे में बताया, तुम इनके बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है। इन द कमेंट सेक्शन यू टेल मी व्हाट इज यूनिक अबाउट लेफ्टिनेंट जनरल कानिटकर, ठीक है। शी इज ऑल्सो वुमेन ऑफिसर, आई मीन, एंड यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज यूनिक अबाउट हर, ठीक है। नाउ मिलिट्री इंटेलिजेंस, सो एज आई written over here, their success lies in being unknown. मोटो क्या है? ऑलवेज अलर्ट, ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस है। सो रोल क्या है? दे प्रोवाइड एक्यूरेट एंड सिंक्रोनाइज्ड इंटेलिजेंस सपोर्ट। तो ये आर्मी का इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस यूनिट है, ठीक है। दे वर्क इंडिपेंडेंट टू आईबी, रॉ, एनआईए, उनके साथ काम करते हैं बट उनसे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मिलिट्री इंटेलिजेंस, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आई रॉ, ठीक है। दे आर इंडिपेंडेंट फोर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। एंड आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जब ओटीए में या आईएमए में कहीं भी कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी में जब डी क्लासिफिकेशन होता है ना, डी क्लासिफिकेशन इज बेसिकली वेर यू चूज योर आर्म्स, ठीक है। जहाँ पे तुम अपने प्रेफरेंस देते हो, फिर आर्मी उसको तुम्हारे मेरिट और वैकेंसीज के हिसाब से तुम्हें आर्म्स एंड रेजिमेंट्स अलॉट करता है। तो डी क्लासिफिकेशन में एमआई इज वन ऑफ दोज आर्म्स विच इज हाईली हाईली ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। हाईली ओवर सब्सक्राइब, मैं ओवर सब्सक्राइब के साथ साथ हाईली भी बोल रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसीज होती है दो या तीन, हार्डली, ठीक है। एंड सो मेनी पीपल ऑफ फॉर मिलिट्री इंटेलिजेंस दैट यू नीड टू बी रियली 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 स्मार्ट एंड रियली लकी टू एक्चुअली ज्वाइन द मिलिट्री इंटेलिजेंस। बट वंस यू ज्वाइन, लाइफ विल बी वेरी डिफरेंट, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, देयर सक्सेस लाइज इन बीइंग अननोन। तो एक ही ऐसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर है जिनको हम जानते हैं, द रीजन बीइंग शी वाज द फर्स्ट वुमन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज एडीसी टू एन आर्मी कमांडर, ठीक है। तुम्हारे प्रेसिडेंट को भी तुमने एडीसी देखे होंगे, जनरली ऑफ द रैंक ऑफ मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। दे कैन बी फ्रॉम एनी फोर्सेस, मेजर और इक्विवेलेंट फ्रॉम एयरफोर्स एंड नेवी, ठीक है। She was a ADC to Army Commander when she was a lieutenant in 2013. She created this historical achievement. ठीक है? She was from the military intelligence. Okay. Army Aviation Corps, again, a very interesting question was asked to me in the SSB कि the first they asked me कि चिन्मय which regiment do you want to join? So मैंने बोला कि sir I want to join aviation. ठीक है? Then they asked me why. So I gave my reasons. Then they asked me कि if we have the Indian Air Force, why do we need aviation corps? हमको आर्मी एविएशन कोर की क्या जरूरत है अगर हमारे पास इंडियन एयरफोर्स है? ऐसा तो है नहीं कि एविएशन कोर के पास कुछ अलग हेलीकॉप्टर्स है ना। दे हैव ध्रुव, दे हैव रुद्र, रुद्र इज द अटैक वर्जन ऑफ ध्रुव, ठीक है। दे हैव चेतक, चीता, अपाचे, एलसीएच, बट ये सब एयरफोर्स के पास भी है। सो व्हाई डू वी नीड आर्मी एविएशन कोर? ठीक है। सो व्हाट इज देयर रोल? देयर रोल इज टू प्रोवाइड एविएशन असिस्टेंस इन आर्मी ऑपरेशंस, ठीक है। अब हर बार हम फोन करके बुला नहीं सकते ना एयरफोर्स को कि आ जाओ हमें काम की जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत है। सो दिस इज अ वेरी लेमैन, आई वुड से एक्सप्लेनेशन टू अ वेरी, इन अ वेरी वेरी सिंपल वे, ठीक है। बट तुम समझो इस चीज को कि अलग से हमें क्यों जरूरत है एविएशन कोर की, बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट बी कॉलिंग द इंडियन एयरफोर्स फॉर द एविएशन असिस्टेंस। जब कोई आर्मी का ऑपरेशन है, टू मेंटेन द सीक्रेसी, टू हैव अ वेरी गुड, यू कैन से synchronization, and for एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस ऑल्सो यू नीड आर्मी एविएशन कोर। इसके बारे में और ज्यादा पढ़ना, और इन तीन रीजंस के अलावा तुम्हें क्या लगता है कि व्हाई डू वी नीड आर्मी एविएशन, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जिसका आंसर सही रहेगा, जिसका आंसर परफेक्ट होगा, उसको हमारी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। आई विल श्योरली रीच आउट टू द पर्सन हु गिव्स मी अ वेरी एक्यूरेट आंसर ऑफ दिस, कि व्हाई डू वी नीड आर्मी एविएशन कोर व्हेन वी हैव द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। मैंने तुम्हें तीन रीजंस ऑलरेडी बता दिए, और इसके अलावा तुम्हें अगर कुछ लगता है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। द वन विद द परफेक्ट आंसर विल गेट समथिंग फ्रॉम मी, ठीक है। आई अश्योर यू, ठीक है। एंड आई होप, आई रियली होप कि कोई ऐसा आंसर देगा, ठीक है, इफ समवन इज रियली इंटरेस्टेड इन एविएशन, ठीक है। नाउ स्पेशल फोर्सेस,
सो ये एक वो फोर्स है ना जो तुम बता के आते हो एसएसबी में. सो आई रिमेम्बर देयर वाज अ गाय, आई मीन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ही वाज वेरी, ही वाज ओवरवेट. ठीक है, काफी ओवरवेट था. तो he went into the SSB. He was asked कि which regiment do you want to join. He said कि सर मुझे तो पैरा में जाना है, मुझे कमांडो बनना है. I want to join the special forces. So then interviewer started asking कि do you know the fitness regime of the special forces? Do you know the fitness requirement? पहले तुम आर्मी तो ज्वाइन करो, फिर स्पेशल फोर्सेस का सोचना. ठीक है. सो ऑल सच, तो आर्मी एविएशन कोर और तुम्हारे स्पेशल फोर्सेस, दीज आर वॉलेंटरी फोर्सेस. ठीक है, वॉलेंटरी. तुम इसमें जाते हो. बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज योर पेरेंट रेजिमेंट कैन बी समथिंग एल्स. यानी कि मान लो तुम इन्फेंट्री से हो या तुम आर्टिलरी से हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें एविएशन में या फिर पैरा स्पेशल फोर्सेस में जाना है, कोई भी स्पेशल फोर्स में, तो यू कैन ऑप्ट फॉर इट आफ्टर यू ज्वाइन दी सर्विसेज ऑल्सो. बाकी जो भी रेजिमेंट्स आर्म्स है उनको तुम्हें डिक्लासिफिकेशन के वक्त ऑप्ट करना होता है. बट दीज यू कैन ऑप्ट इवन आफ्टर ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी. ठीक है. ऑफ कोर्स यू शुड बी एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द एज एंड तुम्हारा क्वालिफिकेशंस एक्सेट्रा भी देखा जाता है. एविएशन में जाने के लिए तुम्हें सीपीएसएस टेस्ट भी देनी पड़ती है. सो दीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर ऑलवेज देयर, बट यू कैन स्टिल ऑप्ट फॉर इट. ठीक है, तुम चूज कर सकते हो. सो स्पेशल फोर्सेस, आई डोंट नीड टू टेल यू सम एनीथिंग डिफरेंट. तो रिपब्लिक डे परेड में सब लोग मार्च करते हैं, बट दे डू नॉट मार्च. यू कैन से दे हॉप और दे जॉग. ठीक है, दे रन थ्रू. ठीक है, they do not march, they do not walk, they tell you the extreme level of stamina which they have. ठीक है. So you can see this maroon beret is a very 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 special thing. ठीक है, सबको नहीं मिलता है, you have to earn it. So some operations about the special forces you need to know about them. ठीक है, तुम्हें एटलीस्ट अभी तो मैंने नाम और ये बताया है लोकेशन, तुम्हें इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑपरेशन ब्लू स्टार, व्हाट इज ऑपरेशन पवन, व्हाट इज कैक्टस, व्हाट इज ऑपरेशन विजय. ऑपरेशन कैक्टस इज वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस. इसके बारे में जरूर पढ़ना एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वाज ऑपरेशन कैक्टस. ठीक है, क्योंकि इसमें हमने दूसरे कंट्री को जाके एक तरह से बचा लिया था. उनका एडमिनिस्ट्रेशन हमने बचाया था. कैसे बचाया था तुम मुझे बताओ. ठीक है. सो दीज आर सम होमवर्क थिंग्स व्हिच आई एम गिविंग यू एंड यू नीड टू रिस्पॉन्ड इन द कमेंट सेक्शन. जो कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्ड करेगा आई गेट टू नो हु इज मोर सीरियस. एंड सीरियस एस्पिरेंट्स को हमारी तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है. ठीक है. सो देर आर अदर कोर्स और यू कैन से आर्म्स ऑल्सो. सो आर्मी एजुकेशन कोर, डेंटल कोर, मिलिट्री पुलिस, इनसे सब डरते हैं. डजेंट मैटर विच रैंक यू आर, विच ऑफिसर यू आर, इनसे सब डरते हैं. ये कहीं भी तुम्हें रोक के चेक कर सकते हैं. ठीक है. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनल एंड व्हीकुलर डिसिप्लिन. ये मिलिट्री के अंदर भी पुलिस है, तो सोचो. ठीक है. देन यू हैव रिमाउंट एंड वेटनरी कोर. हाँ, तो बहुत लोगों को लगता है ना कि यार यू, जो तुम्हारा ऑफिसर है, इफ ही इज फ्रॉम द रेजिमेंट विच यू चूज देन ओनली ही विल आस्क. इट्स नथिंग लाइक दैट इन द एसएसबी. एसएसबी में उनके पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, यू माइट नॉट नो. ठीक है. सो मेरा एक दोस्त था, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड वी कैन एंड विद दिस स्टोरी. देयर इज वन मोर टॉपिक, वेरी स्मॉल टॉपिक, बट ही वाज फ्रॉम, ही वाज अ वेटनरी डॉक्टर. ठीक है. एंड व्हाट हैपेंड इज, ही सेड कि आई वांट टू जॉइन दी आरवीसी. ठीक है, उसने बोला था ये कि मैं जाके आर्मी आई कैन गिव दिस सर्विस ऑल्सो. सो ट्रस्ट मी, दैट ऑफिसर, later on we got to know that officer was a computer engineer. He was from the core of signals, but he asked him so many questions about the RVC and about animals and so many things. He even the aspirant, even my friend, he was not aware of such questions. तो ये कहाँ से पता चला उन्हें. उनके पास एक अच्छा सा बढ़िया लैपटॉप टैब वगैरह होता है उनके सामने. तुम्हें नहीं पता चलेगा वो कब सर्च करेंगे, कब क्या पूछेंगे. सो आई हैड टोल्ड देम अबाउट वैदिक मैथ्स. ठीक है, आई एम अ वैदिक मैथ्स नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल चैंपियन. ठीक है, नेशनल लेवल में आई गॉट सेकंड प्राइज, स्टेट लेवल में आई गॉट फर्स्ट प्राइज. ठीक है, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, नॉट टू शो ऑफ, बट जब मैंने ये सब इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बोला, ही वाज लाइक ओके गुड, गुड यू आर गुड इन वैदिक मैथ्स. ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस अबाउट मैथ्स. ठीक है, वहां तक ठीक था. देन ही आस्क्ड कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ आईपीए. अब ये आईपीए क्या है. आईपीए स्पीड अरिथमेटिक, आइडियल प्ले अबेकस. स्पीड अरिथमेटिक के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे कंडक्ट दिस वैदिक मैथ्स कॉम्पिटिशंस, दिस नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन. तो ये जो कंडक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन का, उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे मुझे पूछा था. ठीक है, दिस इज द लेवल ऑफ यू कैन से स्क्रूटिनी विच
you have to go through. ठीक है, बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, देयर इज नो इशू. तो मुझे पता था, मैंने बता दिया था कि इट्स इन चेन्नई. तो इफ यू आर प्रिपेयर्ड, यू डोंट नीड टू वरी और यू डोंट नीड टू बी टेंस्ड अबाउट इट, बट यू शुड नो, जो भी तुम बता रहे हो ना, जिस भी एरिया से तुम हो, जो भी तुमने लिखा है तुम्हारे पीआईक्यू में, तुम्हें उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, इफ यू आर अ वेटनरी डॉक्टर, यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स. क्योंकि वो नहीं फर्क पड़ता कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर कहाँ से है, दे आस्क यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है, दे हैव ऑल द रिसोर्सेज विद देम. ठीक है, देन जज एडवोकेट जनरल, सो दिस इज द लीगल ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्मी. सो इंडियन आर्मी के जो लीगल केसेस होते हैं, वो सिविलियन जजेस नहीं, वो आर्मी जजेस ही हैंडल करते हैं. ठीक है, देन यू हैव आर्मी पोस्टल सर्विसेज, अ वेरी वेरी अगेन अ वेरी स्पेशल सर्विस, बिकॉज इट हैंडल्स ऑल द पोस्टल नीड्स ऑफ द सर्विसेज. ठीक है, ऑफ ऑल द सर्विसेज बाय द वे. ठीक है, तो लेटर लिखना आज के जनरेशन के लिए बहुत ही आई वुड से लेस नोन थिंग है, बट फॉर द आर्मी इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग. ठीक है. Now there are some joint exercises which the Indian Army, Navy, Air Force they all do. So यहाँ पे मैंने कुछ आर्मी की exercises लिखी है. ठीक है, with the countries. So these are very big exercises. युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार. ठीक है, this is with US. Then गरुड़ शक्ति is with Indonesia, शक्ति is with France, मित्र शक्ति is with श्रीलंका. ये तीनों में शक्ति है, तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है, ध्यान से पढ़ के जाना. ठीक है, देन नोमैडिक एलिफेंट इज समथिंग दे आस्क यू अ लॉट. हैंड इन हैंड काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना के साथ है. जापान इज वेरी फ्रेंडली टू अस, तो धर्मा गार्जियन. ठीक है, जापान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वाड. क्वाड जानते हो ना, क्वाड में कौन कौन से चार कंट्रीज है? वी हैव इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान. इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी एक एक्सरसाइज है. ठीक है, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही सिंपल नाम है उसका. कौन सी एक्सरसाइज है वो बताओ. इंडिया यूएस का मैंने लिखा है. ठीक है, दो लिखे हैं. इंडिया जापान का भी मैंने लिखा है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है, और क्वाड की कौन सी एक्सरसाइज है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. सो इसमें से तुम क्या बताओगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कौन सा एक्सरसाइज है, प्लस क्वाड की कौन सी एक्सरसाइज है. जॉइंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज. एंड मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या एम है? यू गेट टू नो मोर अबाउट द ईच अदर्स फोर्सेस, यू गेट टू नो द फायर पावर, you get to know how the administration works, how the all the weapon systems and all the things work. ठीक है, and it also creates more bonding and more, you can say, it gives a boost to the diplomatic relations as well, है ना, and of course the military relations. ठीक है, so these are some exercises. We also do exercises with countries like Nepal, Singapore, Thailand, जो बहुत ज्यादा बड़े उनके forces नहीं है, but with them also we do this because neighboring countries के लिए के साथ एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट रीड पाकिस्तान ओवर हियर फॉर सम वेरी ऑब्वियस रीजंस. ठीक है, बट नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी एक्सरसाइजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, so with this we come to the end of this video. I hope you liked it. I hope you enjoyed the session. We will be coming up with a session for the Air Force, for the Navy, and then we will be focusing on some वेरी स्पेसिफिक डिटेल्स. कि जैसे यहाँ पे मैंने इन्फेंट्री के बारे में बताया, तो इन्फेंट्री के बारे में एक अलग से वीडियो आएगा. ठीक है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, उनके बारे में अलग से वीडियो आएगा. एयरफोर्स में एक फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में अलग से वीडियो आएगा. व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड. ठीक है, इसमें एसएसबी रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, प्लस तुम्हारे खुद के नॉलेज और तुम्हारी जिज्ञासा के लिए भी काफी फायदा होगा. If you are curious to know about the armed forces, you will be, I'm sure you will like and enjoy those videos because I will be sharing such information with you जो तुम्हें बहुत आसानी से बाकी जगह नहीं मिलेगी. ठीक है, since I have read about it so much and I have been in your place, तो मुझे पता है कि how it feels to be an aspirant और कितना जरूरी है ये इंफॉर्मेशन एंड कितना इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो we'll also talk about the wars which Indian Army, Navy, Air Force they have fought together. ठीक है, यहाँ पे मैंने वॉर्स के बारे में बात नहीं की, बट यू ऑल नो देर आर 4 वॉर्स. उसके बारे में बात करेंगे. अलग अलग ऑपरेशंस के बारे में हम अलग से स्पेसिफिक वीडियोस लेके आएंगे. But to start with, we have made this for you, and I hope you liked it. I hope you enjoyed it. I have whatever homework I have given. Please comment. ठीक है, comment करना. Keep spreading your love. We have been receiving very good response from you guys, and we are really grateful for that. So please like, share, and subscribe, and spread it with your other defense aspirants. And to end it, I would wish from me, from the whole team, a very, very, very happy and prosperous Diwali to all of you, to all your families. Enjoy the festival.
जो तुम्हें करना है फेस्टिवल में करो, एंजॉय करो, बट मेक श्योर दैट यू compensate for it after the festival ends. You study and you also look after your health, and please enjoy your sweets, enjoy your celebrations, and may the festival of light remove all the darkness from your lives. So bye bye, take care, Jai Hind, and again a very very happy and a special Diwali for all of you.